Hello class 8th. In today's class we will start a new chapter, Adobe Photoshop CS6. Adobe Photoshop CS6 is used for creating and designing photos. Let's start. Adobe Photoshop is a graphical designer application software. It is widely used by millions of designer photographers and वेब डेवलपर. एडोब फोटोशॉप जो है वो एक ग्राफिकल एडिटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है किसके थ्रू, जो फोटोग्राफर्स होते हैं या जो वेब डेवलपर्स होते हैं उनके थ्रू. इट हेल्प अस टू create, modify, combine and optimize digital images. It is widely used for designing of posters, magazine covers, album covers, other documents. ये जो होता है ना, ये मॉडिफाई, क्रिएट और कंबाइन करने के लिए या ऑप्टिमाइज करने के लिए जो हमारी डिजिटल इमेजेस होती है, जो फोटोज़ होती हैं, उनके लिए यूज़ आता है. और इसका जो मेनली यूज़ होता है वो यूज़ होता है पोस्टर्स बनाने के लिए या मैगजीन्स बनाने के लिए या कवर पेज बनाने के लिए किसी मैगजीन का. फीचर्स ऑफ फोटोशॉप CS6. न्यू वीडियो टाइमलाइन पैनल अलाउ यू टू ऐड इफेक्ट्स टू वीडियो क्लिप्स. इसके अंदर वीडियो पैनल भी होता है जिसके अंदर आप वीडियो इफेक्ट्स को ऐड कर सकते हो. इट प्रोवाइड्स न्यू कैरेक्टर एंड पैराग्राफ स्टाइल्स दैट मेक टाइप फॉर्मेटिंग मच ईजियर. ये कैरेक्टर और पैराग्राफ स्टाइल्स भी देता है ताकि आप फॉर्मेटिंग को और इजीली कर सको. द ब्लर गैलरी अलाउज टू अप्लाई 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्लर्ड क्रिएट इमेज इफेक्ट्स. ब्लर गैलरी जिससे आप इफेक्ट्स कर सकते हो, अपनी इमेजेस को ब्लर कर सकते हो. पावरफुल वेक्टर टूल्स allow to designer to design and shape graphics elements quickly. पावरफुल वेक्टर टूल्स, जो वेक्टर टूल्स होते हैं इसके अंदर, उससे आप डिज़ाइन को और शेप्स को इजीली एलिमेंट्स कर सकते हो. इट प्रोवाइड डिफरेंट ब्रश स्टाइल टू अप्लाई कलर्स और पैटर्न्स टू द इमेज. ये डिफरेंट ब्रशेस भी देता है ताकि आप उसके अकॉर्डिंग भी अपने इमेज पर पैटर्न्स और कलर्स अप्लाई कर सको. सो नाउ लेट्स स्टार्ट and see how the Photoshop is started and how it looks. CS. First you need to click on start button and look for Adobe Photoshop. Here it is. Click on Adobe Photoshop CS. It will take a time for login because it load all the plugins and all the graphical images, text and etc. After starting, this window appears. This is your Adobe Photoshop CS. Components of Adobe Photoshop CS6 window. Let's learn about different components of Adobe Photoshop CS6 window. On Adobe Photoshop, there are different components available. Like at the top, you can see the menu bar where you find the different and the second one is option panel where you select the different tools. The tools properties also showing here. These are the tools, different tools available for the Photoshop, like selecting tool, marquee tool, lasso tool, magic tool, crop tool, knife, blur tool, brush tool, stamp tool, rubber, paint bucket, blur, sponge, arrow tool, text tool, pen tool, different shapes, picker tool. This is the color panel where you see the color of the selected color. On the right side, you see the navigation, information, histogram, color, where you set the color options, and you can also see this color here also. जो भी आप कलर यहाँ सेट करोगे वो आपको यहाँ पे भी शो होगा. Switches where the more different colors are available. Styles where you find the pre-designed styles which you can use in your
document, history, whatever you use in your document, you can see the history here, layers, channels, patches. So these all are components available while you using Adobe Photoshop CS options. As you can see, there are lots of tools available in a Adobe Photoshop. Now let's learn what the particular tool is doing what work. The first one is Move tool. It moves the selected or selection or selected area around the screen. जो सबसे पहला है मूव टूल, वो क्या करता है, वो सिलेक्शन को या सेलेक्टेड एरिया को आपकी स्क्रीन के ऊपर मूव करता है. द सेकेंड वन इज मार्क्यू सिलेक्शन टूल. इट मेक्स रेक्टेंगुलर, एलिप्स, सिंगल रो एंड सिंगल कॉलम सिलेक्शन. इट अलाउड यू टू सेलेक्ट पार्ट ऑफ द इमेज. मार्क्यू सिलेक्शन टूल जो होता है वो रेक्टेंगुलर या एलिप्स या सिंगल रो और सिंगल कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए होता है, और ये आपको इमेज का किसी पर्टिकुलर पार्ट को भी सेलेक्ट करने के लिए मार्क्यू सिलेक्शन टूल का यूज़ करते हैं. द नेक्स्ट वन इज लेसो टूल. इट मेक्स फ्री हैंड पॉलीगन, स्ट्रेट एजेस एंड मैग्नेटिक स्नैप टू सिलेक्शन. लेसो टूल जो होता है, लेसो टूल फ्री हैंड सिलेक्शन के लिए होता है. क्या फ्री हैंड कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर सकते हो. क्विक सिलेक्शन और मैजिक वैन टूल. It select part of the image on the basis of their color similarity and tonal value. मार्क्यू क्विक सिलेक्शन या मैजिक वैन टूल सिलेक्शन इसलिए यूज़ करते हैं, जो भी उसके इनसे जो भी सेलेक्ट होता है उसमें या तो कलर सिमिलर होना चाहिए या आप उसकी जो भी एरिया सेलेक्ट कर रहे हो वो सिमिलर होना चाहिए. द नेक्स्ट टूल अवेलेबल इज क्रॉप टूल. इट ट्रिम द इमेज. क्रॉप टूल से आप किसी भी इमेज को छोटा कर सकते हो, उसको सेलेक्टेड एरिया को ही आप क्रॉप करके यूज कर सकते हो. स्लाइस सिलेक्शन टूल. इट यूज्ड फॉर स्लाइसिंग द इमेज इनटू द वेरियस सेक्शन. स्लाइस टूल से आप अपनी इमेज को वेरियस सेक्शंस के अंदर कट कर सकते हो. स्पॉट हीलिंग ब्रश या हीलिंग ब्रश, पैच, कॉन्टैक्ट अवेयर मूव और रेड आई कलर. स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल. इट क्विकली रिमूव ब्लेमिश एंड इम्परफेक्ट फ्रॉम द फोटोग्राफ विद द यूनिफॉर्म बैकग्राउंड. स्पॉट हीलिंग से आप जो भी ब्लेमिश या इनपरफेक्टनेस होती है, जो भी चीज़ सही नहीं दिख रही होती है, आप उसको परफेक्ट बैकग्राउंड के साथ में रिमूव कर सकते हो. यूनिफॉर्म बैकग्राउंड, यूनिफॉर्म बैकग्राउंड का मतलब होता है एक ही जैसा बैकग्राउंड रहेगा. हीलिंग ब्रश टूल. इट पेंट्स विद द सैंपल ऑफ पैटर्न टू रिपेयर imperfection and image. It is used to removing wrinkliness and skin blemishing. हीलिंग ब्रश टूल के थ्रू आप जो पैटर्न्स होते हैं, जिनको आप जो हीलिंग्स आ रही होती है, जो कहीं पर फोटो ख़राब दिख रही होती है या कहीं पर लाइंस आ रही होती है, तो आप उनको इजीली रिमूव कर सकते हो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल के थ्रू. द नेक्स्ट वन इज पैच टूल. इट रिपेयर्स imperfections in the selection area of an image using a sample or pattern. पैच टूल के थ्रू आप जो कटिंग कर रहे हो, जहाँ पर कटिंग की है या सेलेक्टिंग अगर आपने कुछ किया और आप उसको मूव कर रहे हो किसी और जगह पर, और वहाँ पर जो इम्परफेक्शन आता है उसको रिपेयर करता है. कॉन्टैक्ट अवेयर टूल. इट इज़ यूज टू सेलेक्ट एंड मूव अ पार्ट ऑफ अ पिक्चर. कंटेंट अवेयर टूल के थ्रू आप सेलेक्ट कर मूव कर सकते हो पिक्चर के किसी पर्टिकुलर पार्ट को. रेड आई टूल. इट रिमूव रेड आई इन द फ्लैश फोटो वाइल विद अ क्लिक. कई बार ऐसा होता है कि जब हम कोई फोटो क्लिक करते हैं तो आप अगर उसकी आइज़ देखते हैं, किसी पर्सन की अगर हम फोटो क्लिक कर रहे हैं और अगर हम उसकी आइज़ देख रहे हैं तो उसकी आइज़ में एक रेडनेस शो करती है, एक रेड स्पॉट शो करता है. द रेड आई टूल रिमूव दैट रेडनेस ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन's आई. द नेक्स्ट वन इज ब्रश, पेंसिल, कलर रिप्लेसमेंट, मिक्स ब्रश टूल. ब्रश टूल. इट पेंट्स ब्रश स्ट्रोक्स. ब्रश टूल के थ्रू आप ब्रश के स्ट्रोक्स पेंट कर सकते हैं. पेंसिल टूल. इट पेंट्स हार्ड एजेस स्ट्रोक. पेंसिल के थ्रू आप कोई हार्ड एजेस मतलब मोटी थिक लाइन ड्रॉ कर सकते हो. कलर रिप्लेसमेंट टूल. इट सब्स्टिट्यूट वन कलर फॉर अनदर. कलर रिप्लेसमेंट टूल के थ्रू आप एक कलर से दूसरे कलर का सब्स्टिट्यूट क्रिएट कर सकते हो. The next one is mix brush tool. It allow you to paint more realistic and Photoshop. With mixing brush, you can mix color on a canvas.
मिक्सिंग ब्रश टूल के थ्रू आप कोई रियलिस्टिकली पेंटिंग क्या बनाते हैं वैसे आप बना सकते हो। ये कलर्स को मिक्स करके और उनको फिर ब्रश के टूल की तरह यूज़ करती है। नेक्स्ट इज क्लोन स्टेम पैटर्न स्टेम टूल। Clone stamp tool, it is used for cloning or copying one area of an image onto the another area. क्लोन स्टैम्प टूल के थ्रू आप किसी एक पर्टिकुलर एरिया का, कोई इमेज का ऐसा एरिया है जिसको आप दूसरी जगह पर भी यूज़ करना चाहते हो, तो आप उसको क्लोन करके पेस्ट कर सकते हो। पैटर्न स्टैम्प टूल, इट पैटर्न पेंट्स विद द पार्ट ऑफ एन इमेज एज अ पैटर्न। पैटर्न इमेज टूल के थ्रू आप किसी पार्ट ऑफ इमेज को पेंट कर सकते हो पैटर्न के साथ में। The next one is art history brush tools. History brush tool, it paints a copy of a selected state or snapshot into the current image window. History brush tool के थ्रू आप जो भी आपने सेलेक्ट कर रखा है उसका या स्नैपशॉट ले रखा है उसको करंट इमेज विंडो पर पेंट ड्रॉ करता है। आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल, इट पेंट्स stylish stroke that simulate the look of different paint style using a selected state of a snapshot. आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल के थ्रू स्टाइलिश स्ट्रोक्स को आप दे सकते हो और वो भी जो आप सेलेक्टेड कर रखा है स्नैपशॉट ले रखा है उसके थ्रू। इरेजर, बैकग्राउंड इरेजर एंड मैजिक इरेजर टूल। इरेजर टूल, इट इरेज पिक्सल्स एंड रीस्टोर पार्ट ऑफ एन इमेज टू अ प्रीवियसली सेव्ड स्टेट। इरेजर टूल के थ्रू आप पिक्सल्स को रिमूव करके रीस्टोर कर सकते हो अपने प्रीवियसली जो सेव्ड स्टेट होती है उसके अकॉर्डिंग अपनी इमेज को। द नेक्स्ट इज बैकग्राउंड इरेजर टूल, इट इरेज एरिया ऑफ ट्रांसपेरेंसी बाय ड्रैगिंग। बैकग्राउंड इरेजर टूल के थ्रू आपका जो बैकग्राउंड होता है उसको इरेज करके उसकी जगह ट्रांसपेरेंसी सेट की जाती है। मैजिक इरेजर टूल, इट इरेज सॉलिड कलर्ड एरिया टू ट्रांसपेरेंसी विद द सिंगल क्लिक। मैजिक इरेजर टूल के थ्रू आप जो सॉलिड कलर एरिया होता है उसको इरेज करके ट्रांसपेरेंसी कर सकते हो। पेंट बकेट, ग्रिड लाइंस, 3D मटेरियल्स ड्रॉप टूल्स। पेंट बकेट टूल, इट फिल्ड सिमिलर कलर्स एरिया विद द फोरग्राउंड कलर। पेंट बकेट टूल के थ्रू आप कलर फिल कर सकते हो फोरग्राउंड में, आगे की तरफ जो होता है एरिया उसमें कलर कर सकते हो। ग्रेडियंट टूल, इट क्रिएट्स स्ट्रेट लाइंस, रेडियल एंगल, रिफ्लेक्शन एंड डायमंड ब्लेंड बिटवीन कलर्स। अगर आपको कलर्स के बीच में ही कोई पैटर्न चाहिए, जैसे रेडियंट जो सर्कल पैटर्न चाहिए या लाइनिंग पैटर्न चाहिए या डायमंड पैटर्न चाहिए, तो वो आप ग्रेडियंट्स टूल के थ्रू यूज़ कर सकते हो। 3D मटेरियल ड्रॉप टूल, इट इज़ यूज्ड इन 3D मॉडलिंग, इट हेल्प्स इन सैम्पलिंग a material from one area and dropping into another area of model, mesh or 3D layer. 3D मॉडलिंग मटेरियल ड्रॉप टूल 3D की मॉडलिंग या पेंटिंग से जब या इमेजिंग हम करते हैं तब यूज़ आता है, और ये एक एरिया से कोई कलर या 3D इमेज को पिक करता है और उसको दूसरी जगह पर ड्रॉप आउट करता है। द नेक्स्ट वन इज टाइप मास्क टूल। टाइप टूल, इट क्रिएट्स टाइप ऑफ एन इमेज। टाइप टूल के अंदर आप टेक्स्ट को टाइप कर सकते हो अपनी इमेज के ऊपर। टाइप मास्क टूल, इट क्रिएट अ सिलेक्शन टाइप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। आप टाइप मास्क टूल के अंदर आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको हॉरिजॉन्टल टाइप करना है या वर्टिकल टाइप करना है। पाथ सिलेक्शन, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, दे मेक शेप और सेगमेंट सेलेक्शन शोइंग एंकर पॉइंट्स, डायरेक्शन लाइन एंड डायरेक्शन पॉइंट्स। अगर आपको किसी जगह कोई पेंटिंग या कोई इमेज ऐसी बनानी है जिसके अंदर आपको पार्ट डायरेक्शन देना है, सिलेक्शन देना है, तो उसके लिए आप पार्ट सिलेक्शन या डायरेक्शन टूल को यूज़ कर सकते हो। रेक्टेंगल शेप्स टूल, इट मेक्स कस्टम शेप सेलेक्टेड फ्रॉम अ कस्टम शेप लिस्ट। रेक्टेंगल शेप टूल के अंदर बहुत सारी और भी टूल्स होती है, तो आप उसमें से कस्टम शेप टूल को यूज़ करके आप शेप को डिज़ाइन कर सकते हो। हैंड टूल, इट इनेबल्स यू टू मूव द इमेज एनीवेयर ऑन द स्क्रीन। हैंड टूल को यूज़ करके आप इमेज को पकड़ सकते हो और उसको कहीं पर भी मूव कर सकते हो। नेक्स्ट इज जूम टूल, इट हेल्प यू टू चेंज द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज। जूम टूल के यूज़ करके आप इमेज को मैग्नीफाई आउट कर सकते हो, बड़ा जूम कर सकते हो। किसी पर्टिकुलर पोर्शन को देखने के लिए आप उसको जूम या जूम आउट कर सकते हो। फोरग्राउंड कलर टूल, इट हेल्प यू टू सेट द फोरग्राउंड कलर ऑफ द इमेज। फोरग्राउंड का मतलब होता है जो सामने हमें दिख रहा होता है
उसके कलर को सेट करना। बैकग्राउंड कलर टूल, इट हेल्प यू टू सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ द इमेज। बैकग्राउंड कलर टूल के थ्रू आप इमेज के बैकग्राउंड के अंदर जो कलर आप सेट करना चाहते हो वो सेट कर सकते हो। So as you see, there are lots of tools available in Adobe Photoshop CS. So this is it for today class. We will continue in a next class. Thank you.